So, good afternoon, scholars. We are on to the last day now. So, for last four sessions, we had comprehensive discussions on how to perform statistical analysis using SPSS. और आपकी अभी तक ideas clear है. Statistical analysis की दो baskets होती है, descriptive और inferential. हमने डे वन पे ये कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया था कि डिस्क्रिप्टिव यानी क्या होता है और इन्फरेंशियल यानी क्या. Second session, we devoted to descriptive analysis. We perform statistical analysis, and we confined ourselves to, preparation of frequency distribution tables. Along with that, we have prepared certain charts like pie chart, bar graph, joint bar graphs, and all. At the same time, we computed different summary statistical measures, like very well. Uh, there are distinct baskets like measures of central tendency, measures of dispersion, and measures of symmetry, asymmetry, and different types of measures like mean, mode, median, standard deviation, variance, average deviation, standard error, skewness, kurtosis. We have acquainted ourselves with all these measures, and at the same time how to compute all these measures using SPSS we have learned. And very well, computation and reporting of different summary statistical measures is compulsory, and in line with that we have also learned to compute Cronspach alpha. We understood the concept of Cronspach alpha, reliability, validity we had discussions on, and we have also learned how to compute Cronspach alpha using SPSS. And for last couple of sessions, we had been performing inferential statistical analysis, and very well in inferential statistics, there are two parts. Like first part is about estimation of confidence interval, and we did that with the help of SPSS, and at the same time, hypothesis testing part you are now well aware of, which is considered as test of significance. And in that we have got four baskets: univariate, bivariate, multivariate, and non-parametric. And by far we have computed, or we have performed univariate statistical analysis or hypothesis testing part, and t-test we perform with certain examples like how to perform univariate t-test based on mean on Likert data. We have already learned that, and we have had hands-on as well on that particular part. And in the last session, we started our discussions with performance of bivariate analysis, and we have understood the basket of bivariate analysis. Very well now. There are four different types of approaches in bivariate analysis, including comparison of different groups, two groups you can say, and then the second part is examining relationship between two variables, and the third part is prediction part, and the fourth part is learning association. And at the same time we had discussions on what is parametric and non-parametric test. And now today is the last day, and today we will be performing three tests. Most crucial one you can say. The first one, as you can read on the screen, is chi-square test. Along with that, we are going to perform correlation analysis today. And we'll perform regression analysis today using SPSS. So very well ki initially we understood the concept, you know, uh, what all steps to be performed, what is the basic concept, what kind of requirements of performing these types of tests. Typically we firstly get into the theory part, the conceptual matter you can say, and subsequently we perform those particular tests using SPSS. And the similar way we will be operating today as well. So before getting into this, as you can see, we have confined ourselves to this bivariate analysis in this particular workshop. और इसके बाद फिर मल्टीवेरिएट आता है, आपको भी मालूम है. और बाइवेरिएट में जैसे मैं बता रहा था, चार चीज़ें हैं. एक होती है कंपैरेटिव स्टडीज, कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप्स, और इसमें हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की टेस्ट लास्ट सेशन में ऑलरेडी परफॉर्म किया. स्पेसिफिकली द टी टेस्ट वी परफॉर्म, independent samples t-test, then paired t-test we perform in the last lecture, ANOVA we perform you can say. Then
examining relationships. It is called as correlation analysis. And the third part is in bivariate analysis is about prediction. That is what is called as a regression analysis. And the fourth part is association, the test of association, which is also considered as a measures of attributes. So as you can see, we are already done with this particular part. And now today we will be covering these three tests. This is what is on cards for today's discussions, and I am starting my discussions with this. So before getting into this, we'll just quickly recall the concept of parametric and non-parametric. Parametric test and non-parametric test. So one of the basic requirements is for performing parametric test is data should be metric. And over here, as far as we'll perform non-parametric tests when we have got non-parametric data, non-metric data rather. And metric means numerical data, numeric data. And it is non-numeric data. And what is numeric data? Numeric is about interval or a ratio data. And what is non-metric? It is called as nominal or ordinal data. And in general, this is called as continuous data. And it is called as non-continuous data. And to make the things simplified, it is what is called as the data available in numbers. So numeric it is. And it is either categorical or a rank data. So हमने पिछले सेशन में जो टेस्ट की थी, टी टेस्ट वगैरह, एनोवा वगैरह, वो पैरामेट्रिक टेस्ट थी. आज के सेशन की शुरुआत में कर रहा हूँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जब आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है. ओके. और ऐसे वक्त हम लोग जो बहुत ही कॉमन टेस्ट परफॉर्म होती है उसको कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट. So this test we are going to perform and it is a non-parametric test. बहुत ही कॉमन टेस्ट है, बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है नॉन पैरामेट्रिक में. तो समझ लेते हैं, यूज करके आप पेपर्स तैयार कर सकते हैं इसके ऊपर, या थीसिस में भी यूज होती ही है, खास करके सोशल साइंसेस या फिर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इवन साइंसेस में भी ये टेस्ट यूज होती है. तो समझने की कोशिश करते हैं. पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्विकली काई स्क्वायर टेस्ट का. काई स्क्वायर टेस्ट अलग अलग प्रकार की होती है, कोई ये एक टेस्ट नहीं है. हम लोग जो टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं अभी, जो बहुत ही कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एज काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट एक टेस्ट आती है, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ होमोजिनिटी ऑफ वैरिएंस भी आती है. तो इसमें अलग अलग प्रकार की टेस्ट है काई स्क्वायर नाम से, पर जो हम लोग जनरली परफॉर्म करते हैं वो है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं. ये एसोसिएशन यानी क्या, मैं समझा रहा हूँ. काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन या काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ये नाम है इस टेस्ट का. ये नॉन पैरामेट्रिक है, जैसे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको. आपके काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. ये काई स्क्वायर, ये सिंबल है जो ग्रीक लेटर काई से, कुछ लोग इसको की वगैरह कहते हैं या चाय कहते हैं, पर इट इज, एज फार एज माय नॉलेज गोस, इट इज प्रोनाउंस्ड एज काई स्क्वायर टेस्ट. सो इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन साहब इन 1890. आप देख सकते हैं बहुत पुरानी टेस्ट है ये. और ये एक काई स्क्वायर जो है, ये एक क्वांटिटी डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन थियरी एंड ऑब्जर्वेशन. तो ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थियरी और ऑब्जर्वेशन क्या है. आपको भी मालूम है कि जब हम कोई हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसको
इंटरप्रेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाला मेथड और दूसरा होता है पी वैल्यू वाला मेथड। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कंपेयर करते हैं क्रिटिकल वैल्यू के साथ जो टेबल वैल्यू होती है, और दूसरा पी वैल्यू हम लोग अल्फा के साथ कंपेयर करते हैं जिसको हम सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का ये फॉर्मूला है जो हमको यूज नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। जो थियरी एंड ऑब्जर्व में बोल रहा था वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ माइनस ई अपॉन ई होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। एंड ओवर हियर ओ इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड ई इज कॉल्ड एज आइदर थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ ऑब्जर्व और थियोरेटिकल क्या होता है। उससे पहले हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज कब करते हैं, तो हम एसोसिएशन चेक करने की कोशिश करते हैं जब हमारे पास दो कैटेगोरिकल या फिर नॉमिनल वेरिएबल्स है उस वक्त। अभी इफ सपोज मुझे एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। एक चार पांच एग्जाम्पल्स है आने वाली स्लाइड में, पर फिर भी एक एग्जाम्पल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। मैंने हाल ही में एक रियल लाइफ केस पढ़ी थी, वही एक अभी मुझे स्ट्राइक हो रही है तो मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एक रिसर्चर था, वो ये चेक कर रहा था कि जो पार्टिसिपेंट्स है जिनका सर्वे किया जा रहा था उनका हेयर कलर, उसने कुछ चार हेयर कलर्स कंसिडर किए थे, ब्लैक, ग्रे, ब्लॉन्ड और कोई एक था शायद ब्राउन था, और इस तरफ थे आईबॉल कलर। और इसमें भी ब्लैक, ब्राउन, ऐसे कुछ थे तीन चार। ओके, अभी इसमें आप देखेंगे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल v1 हेयर कलर ऑफ रेस्पोंडेंट्स एंड v2 आईबॉल कलर ऑफ रेस्पोंडेंट्स। इसमें ब्लू था शायद, एक ब्लू था और ब्लू ग्रीन ऐसा कुछ था, मुझे याद आ रहा है पड़ा हुआ। ओके, तो इसमें दो वेरिएबल्स है और आप देखेंगे दोनों वेरिएबल की कैटेगरी क्या है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेयर कलर जो है इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल। Why? Because you have got this variable and under this you have got options A, B, C, D, और आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और रिस्पोंडेंट नंबर वन तो उसका हेयर कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप जस्ट टिक मार्क करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, आप देखेंगे दूसरा वेरिएबल ये भी नॉमिनल है, ये भी नॉमिनल वेरिएबल है और यहाँ पे फिर से ए बी सी डी कैटेगरीज है और यहाँ पे अप्रोप्रिएट फैक्ट जो है उसके ऊपर टिक करना है। As you can see, we have got both the variables as nominal variables. So जो data आएगा वो counted आएगा। If suppose your sample size is 500, तो eventually data का क्या आएगा, ब्लैक वाले कितने हैं ये 500 में से, बाद में ग्रे वाले कितने हैं, ब्लॉन्ड कितने हैं और आपके ब्राउन कितने हैं। इस तरीके से आपका ब्रेकअप आएगा डेटा का ये 500 का। और इसी तरह फिर से ये 500 का ब्रेकअप आएगा कि इसमें ब्लैक कितने हैं, ब्लैक कलर के आईबॉल कलर, ब्राउन कलर का, ब्लू और ग्रीन। आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये काउंट्स के फॉर्म में आ रहा है, ब्लैक का काउंट, ब्राउन का काउंट, ब्लू का काउंट, ग्रीन का काउंट, और यहाँ पे भी सेम हो रहा है, काउंट के फॉर्म में डेटा आ रहा है। यानी क्या, दोनों के दोनों वेरिएबल्स आपके कैटेगोरिकल है, डेटा जो है काउंट्स के फॉर्म में आ रहा है। उस वक्त हम लोग ये वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है क्या, ये अगर चेक करना है तो हम एसोसिएशन की टेस्ट परफॉर्म करते हैं। व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग ओवर हियर, हेयर कलर और आईबॉल कलर, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप होती है क्या, क्या ऐसा है कि जिसका बालों का रंग काला है तो क्या उसके आईबॉल का भी कलर ब्लैक ही होता है, ऐसा हमको चेक करना है। वी आर सिंपली एग्जामिनिंग द एसोसिएशन बिटवीन two different categorical variables, and if you wish to do so then in that particular case we typically perform
chi-square test of association या फिर chi-square test of independence, as you can see, to examine association between two categorical or nominal variables. और कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं जिसको पिवोट टेबल एक्सेल में कहते हैं, या फिर इन जनरल इसको कॉन्टिजेंसी टेबल एसपीएसएस की भाषा में, या इसको क्रॉस टेबल भी कहते हैं। और एसपीएसएस हमको ये क्रॉस टेबल बना के देगा। इट विल लुक लाइक दिस। अभी देखिए मेरे पास दो वेरिएबल्स है। एक है स्मोकिंग स्टेटस, कि आप स्मोकिंग करते हैं, यस और नो, ऐसा डेटा है। डू यू स्मोक, तो यस बोलने वाले स्मोकर हो गए, नो बोलने वाले नॉन स्मोकर हो गए। और फिर दूसरा एक वेरिएबल है प्रिवेलेंस ऑफ लंग कैंसर, एक्सक्यूज मी, प्रिवेलेंस ऑफ लंग कैंसर। तो यहाँ पे हमारे पास है विथ लंग कैंसर और विदाउट लंग कैंसर, ऐसे दो कैटेगरीज। और इसके विथ लंग कैंसर वाले टोटल 175 का सैंपल है, और विथ लंग कैंसर वाले 825। टोटल सैंपल जिसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं, इट इज 1000। स्मोकर का सैंपल हमने लिया है 500 का, नॉन स्मोकर का सैंपल लिया है हमने 500 का। तो आप देखेंगे अभी ये जो टेबल बन के आ रहा है, इसको हम कॉन्टिजेंसी टेबल कहते हैं। इसमें आप देखेंगे ये जो फ्रीक्वेंसीज है, जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं और जिनको लंग कैंसर है, तो 500 में से 150 लोग हैं। उसके बाद ऐसे कितने लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं पर जिनको लंग कैंसर नहीं है, तो ये 350 है। ऐसे कितने लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते हैं पर फिर भी लंग कैंसर है, तो ऐसे 25। और ऐसे कितने लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते हैं और जिनको लंग कैंसर नहीं है। तो हमको चेक क्या करना है, क्या स्मोकिंग और अकरेंस ऑफ लंग कैंसर ऐसा कुछ होता है क्या, इसका कोई कनेक्शन है क्या, स्मोकिंग का कनेक्शन लंग कैंसर होने के साथ है क्या, ये चेक करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे ये हो गई स्मोकर की हमारी रो 1, और इसकी जो टोटल बनेगी ये 500, इसको हम कहते हैं रो 1 टोटल। वैसे ही ये रो 2 टोटल, और उसी तरीके से ये है हमारा कॉलम 1 टोटल, ये C1। और ये है हमारा कॉलम 2 टोटल, और ये है हमारा ग्रैंड टोटल। इस तरीके से जो टेबल बनता है इसको हम क्रॉस टेबल या फिर कॉन्टिजेंसी टेबल कहते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जेंडर और आइसक्रीम फ्लेवर के प्रेफरेंसेस, इसमें कोई कनेक्शन है क्या। ओके, कि क्या लड़कियों का झुकाव चॉकलेट आइसक्रीम के फ्लेवर की तरफ है, या बॉयज का झुकाव किसी एक पर्टिकुलर फ्लेवर की तरफ से है। हमको जस्ट चेक करना है कि वेदर देयर इज एनी कनेक्शन बिटवीन जेंडर एंड आइसक्रीम फ्लेवर प्रेफरेंसेस। तो हमने जेंडर की दो कैटेगरीज ली है, बॉयज और गर्ल्स, और आइसक्रीम फ्लेवर की तीन, एक चॉकलेट, दूसरा बटर स्कॉच और तीसरा केसर पिस्ता। और यहाँ हमने 500 का टोटल सैंपल लिया है, इसमें से बॉयज 250, लड़कियां 250, चॉकलेट खाने वाली चॉकलेट खाने वाले टोटल 150 है, बटर स्कॉच 170 और केसर पिस्ता पसंद करने वाले टोटल 180। तो चेक क्या हो रहा है, वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड आइसक्रीम फ्लेवर प्रेफरेंसेस। दिस इज व्हाट वी विश टू अंडरस्टैंड। और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये एम्प्लॉयज है और इनके घर से इनके ऑफिस का डिस्टेंस, जिसको हम कम्यूटिंग टाइम कहते हैं। ओके, ये कम्यूटिंग टाइप की तीन कैटेगरीज ली हमने, कि घर से ऑफिस का डिस्टेंस 20 मिनट से कम है, 20 से 50 मिनट के बीच में है, और 50 मिनट से ऊपर है। और फिर हमने इनका स्ट्रेस मेजर किया है, पर स्ट्रेस को हमने यहाँ कंटिन्यूस ना लेते हुए कैटेगोरिकल लिया है। तो 3 लेवल की स्ट्रेस है, हाई स्ट्रेस, मॉडरेट स्ट्रेस और लो स्ट्रेस। हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन कम्यूटिंग टाइम एंड स्ट्रेस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। और आप देख सकते हैं टोटल 116 का सैंपल है। ये मैंने कहीं एक पेपर में इसे ही लिया है, पेपर पढ़ने में आया था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा, तो आई थॉट आई मस्ट शेयर दिस विद यू। सो एज यू कैन सी, हाई स्ट्रेस वाले 44 है, मॉडरेट स्ट्रेस वाले 19, लो स्ट्रेस वाले 53। सो दिस वे यू, इफ यू आर हैविंग डेटा विथ यू, ओके, इस तरीके से आपका अगर टेबल बन पा रहा है तो समझ जाएंगे कि हम लोग का स्क्वायर टेस्ट आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। दो वेरिएबल्स है V1 V2, हाँ, दोनों के दोनों नॉमिनल। अभी चेक कर रहे हैं हम लोग डेजिग्नेशन वाइज फीडबैक में कोई फर्क होता है क्या। जैसे इसी पर्टिकुलर वर्कशॉप का फीडबैक लेना है, और ये पार्टिसिपेंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर की कैटेगरी। और फीडबैक जो इन्होंने दिया हुआ है पुअर, एवरेज, गुड।
So whether designation and feedback, whether there is any association between these two variables, if we wish to examine, then we can perform these tests. अगेन एक पर्टिकुलर मूवी है और वो मूवी के प्रेफरेंसेस, जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ हिस्टोरिकल मूवीज, ये मैंने एक कैटेगरी ली है और मैं देखना चाहता हूँ कि एज वाइज हिस्टोरिकल मूवीज के लाइकिंग में कोई कनेक्शन है क्या। ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडर 20, 20 to 39, 40 to 59 एंड 60 एंड अबव। और इस तरफ है लाइक द मूवी, डिसलाइक द मूवी एंड इनडिफरेंट मींस न्यूट्रल, 3 पॉइंट स्केल ली गई है। सो एज यू कैन सी आवर टोटल सैंपल साइज इज 500 एंड you have got data like this is what is called as your observed data, OI कहते हैं इसको, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। ये जो है ये है हमारी ऑब्जर्व यानी सैंपल से जो डेटा आया है वो, और इसको हम कंपेयर करते हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। वो क्या है समझा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मूवी है और जेंडर वाइज उनका हम लोग कनेक्शन देख रहे हैं कि व्हाट इज देयर ओपिनियन। ओपिनियन इज ऑफ थ्री टाइप: एंटरटेनिंग, एजुकेशनल एंड वेस्ट ऑफ टाइम। So you have got, if suppose you have got data like this, then we can perform chi-square test. So requirements क्या होगी? Obviously categorical data लगेगा आपको V1 और V2 का, दो वेरिएबल V1 V2, sample size greater than 50, total sample size, हाँ, total sample size should be greater than 50 and each cell must have at least 5 observation। each cell यानी क्या, ये सेल की बात हो रही है कि इसमें 5 से कम डेटा नहीं होना चाहिए, काउंट्स 5 से ऊपर ये काउंट्स होने चाहिए, ये सब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। तो फिर ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैंने आपको जैसे काई स्क्वेयर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई स्क्वेयर अपॉन ई आई। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है। ओ आई तो मैंने समझा दिया है कि क्या है। ऑब्जर्व्ड मींस सैंपल से डेटा कलेक्ट करने के बाद जो भी काउंट्स आ रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज के, वो ओ आई होता है। अभी देखते हैं ई आई, इसको थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं हम लोग। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही थी, जेंडर, बॉयज, गर्ल्स, चॉकलेट, बटरस्कॉच, केसर पिस्ता। ये मैंने चार्ट थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको। ये हमने सैंपल से कलेक्ट किया हुआ है 500 सैंपल से, इसको हम कहेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और यही डेटा यूज करके हम इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कंप्यूटेशन करते हैं। आप देखेंगे सब कुछ सेम रहेगा, ये टोटल सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, ये सेम रहेगी उसी चार्ट में जो ऑब्जर्व है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ग्रैंड टोटल भी सेम है। सिर्फ ये वाला जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज काउंट करते हैं ये वाला डेटा यूज करके। ये वाला और ये वाला डेटा, रो डेटा और कॉलम डेटा यूज करके हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कंप्यूटेशन करते हैं। उसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो मैं क्विकली करके दिखा देता हूँ। स्पेसेस हमको ये डायरेक्टली करके दिखा देगा, पर फिर भी मैं मेरी तरफ से एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। लेट मी चेक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। ओके, मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैं जानना चाहता हूँ कि जेंडर और व्हीकल के कलर का प्रेफरेंस, इसमें कोई एसोसिएशन है क्या? जेंडर और व्हीकल का कलर का प्रेफरेंस, इफ सपोज कार, इसमें कोई रिलेशनशिप है क्या? तो 12,000 का सैंपल लिया गया है और ये काउंट्स आया है जिसको हम कह रहे हैं ये वाली ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज है, और ये यूज करके हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का कंप्यूटेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो समझा रहा हूँ। मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यहाँ लगेगी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। ये फ्रीक्वेंसीज हम कंप्यूट करने जा रहे हैं ये वाला डेटा यूज करके, रो टोटल, कॉलम टोटल और ग्रैंड टोटल। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो मैं हर एक सेल की 6 सेल की निकालूंगा। यहाँ पे रो टोटल, इस रो की टोटल कितनी है, तो ये 4,000 मल्टीप्लाइड बाय रो टोटल, सॉरी ये मैंने कॉलम टोटल ले लिया। रो टोटल इज दिस, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल ये है, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल ये है।
आंसर चेंज नहीं हुआ होता, पर आपको शायद कंफ्यूजन हुआ होता, इसलिए मैंने वो करेक्ट कर लिया। उसके बाद इस पर्टिकुलर सेल की हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 12,000। इसी तरीके से बाकी इसकी निकाल लेंगे, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। सिमिलर वे, रो टोटल multiplied by column total divided by grand total। इसकी रो टोटल multiplied by column total divided by grand total। इसके बाद रो टोटल multiplied by column total divided by grand total। दैट्स इट। और ये काउंट्स है, नंबर ऑफ पीपल बोल रहे हैं ना, नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट, तो इसमें डेसिमल पॉइंट की जरूरत नहीं होगी, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। सो दीज आर अवर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और काई स्क्वायर टेस्ट में हम करते क्या है, हम लोग ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, इनको ओ आई कहा जाता है। और ये जो अभी हमने कंप्यूट किए हैं, ये है हमारे ई आई। और इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट में। दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं एसपीएसएस के सेंस में, और ये समझने की कोशिश करते हैं सिस्टमैटिकली। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस समझ लेंगे। सिंपल सा है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। अभी जो मैं बात कर रहा था, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड कैटेगरी 2 इज कार टाइप, सपोज कार कलर। And highlighting word over here is there is no association. This is what we considered as a null hypothesis and alternate। नो शब्द निकाल लेंगे और उसकी जगह सिग्निफिकेंट रख देंगे, तो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस तैयार हो जाएगा। बाकी ड्राफ्ट जैसा का वैसा। एक एग्जांपल लेते हैं और स्पेसेस में करके देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है। We wish to examine whether income has association with the type of mobile phone possessed by people। Okay? हमारे पास एक वेरिएबल है इनकम, जिसको मैंने एबीसीडी के सेंस में लिया है, यानी इसको मैंने नॉमिनल लिया हुआ है। डायरेक्ट नहीं पूछा है आपका इनकम कितना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स दी है। और दूसरा है फोन टाइप, मोबाइल टाइप, और इसमें भी हमने कैटेगरीज ली है, इकोनॉमी, लग्जरियस वगैरह। ऐसा मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास ये डेटा है इसका, आप देख सकते हैं मैंने इनकम कैटेगरीज जो है इसमें 3 लेवल्स दी है। एक है लेस देन 5 लाख रुपीज इनकम, ईयरली इनकम, देन 5 to 10 लाख ये दूसरा, और मोर देन 10 लाख, और इसको मैंने कोडिंग भी कर दिया है। तो दिस इज माय वेरिएबल फन। और दूसरा मेरा वेरिएबल है फोन टाइप या फिर मोबाइल टाइप, जिसमें 3 कैटेगरीज ली है, इकोनॉमी या फिर बजट क्लास, देन मिड सेगमेंट एंड देन फ्लैगशिप, या फिर इसको हम प्रीमियम भी कह सकते हैं। ये 3 हमने कोडिंग कर लिए हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं 3x3 मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लेवल्स ली हैं और यहाँ पे हमने 3 लेवल्स ली हैं। और हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, आर क्यू हमारा है वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन इनकम एंड फोन टाइप। This is what we are trying to examine. Okay, association between income and phone type। Null बना लेंगे। There is no association between category 1 is income V1 and phone type category 2 V2 possessed by people। इसमें ये कमांड्स है, स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, क्रॉस टैब्स, उस दिन किया था हमने, आपको याद होगा शायद ये फंक्शन। और इसमें फिर मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। चलिए उधर स्पेसेस में जाते हैं, वहीं पे करते हैं, और वहीं से मैं आपको आउटपुट इंटरप्रेट करके
जनरेट करके इंटरप्रेट कैसे करते हैं समझा देता हूँ. Income and phone, this file I have got. Okay, these are my two variables, income and phone type. Both are numeric. Okay, decimals तो है, लेबल की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों नॉमिनल है as you can see. ओके, इसमें नॉमिनल है इसलिए कैटेगरीज डिफाइन करना जरूरी है. तो ये मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखी है फाइल. 1 इज लेस देन 5 लाख रुपीज इनकम, 2 इज 5 to 10 lakh, 3 is more than 10 lakh, and then the second nominal variable, 1 is budget fund, 2 is mid segment, and 3 is flagship. Okay, now we'll perform chi-square test. Go to analyze descriptive stat, cross tabs, then transfer the variables income as row and phone type as columns. Then go to statistics. Then over here we want chi-square test. We want to perform chi-square test. Then continue. Then press cells. We want काउंट्स विच वन ऑब्जर्व तो चाहिए. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया था एक्सेल में, वो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी हमको कैलकुलेट करके दे देगा. देन प्रेस कंटिन्यू. फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, बूटस्ट्रैपिंग करना नहीं है. यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो चार्ट भी मिल जाएगा. एक क्लस्टर्ड बार चार्ट यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ. ये हमारा जॉइंट पैराग्राफ या मल्टीपल चार्ट जिसको कहते हैं, मल्टीपल कॉलम चार्ट यहाँ से आ जाएगा. बाकी कुछ नहीं, आपको ओके प्रेस करना है और ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है. एक एक करके इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं. यह है हमारी केस प्रोसेसिंग समरी, जहाँ से हमको पता चल जाएगा कि कौन से वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन है. तो हम रिलेशनशिप एग्जामिन करना चाहते हैं इनकम और फोन टाइप की. सैंपल साइज 100 का है, वैलिड 100% है, इसमें कोई भी मिसिंग डेटा नहीं है, नो मिसिंग डेटा. उसके बाद इनकम टाइप, ये है हमारा कॉन्टिंजेंसी टेबल जिसको क्रॉस टैग कहते हैं. आप देख रहे हैं इसमें काउंट से ये ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं. बजट फोन जो एक्चुअली जिनके पास है वो है 15 और एक्सपेक्टेड काउंट आ रहा है 9. मिड में भी उसी तरीके से सभी आप देख सकते हो कि ये जो है ये है हमारा कॉन्टिंजेंसी टेबल या क्रॉस टेबल जिसको हम कहते हैं, और जहाँ पे हम लोगों को हमारी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज दोनों एक साथ मिल जाती है. ऊपर की जो रो होगी इस टेबल की वो होगी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं ओ आई, और नीचे जो होगी इसको कहते हैं ई आई. ये सब हर एक कैटेगरी के लिए. ये दूसरी कैटेगरी, ये है आपकी ऑब्जर्व्ड और ये है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. तो ये क्रॉस टैबुलेशन भी हम लोगों को समझ में आ गया है. उसके बाद बात करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की, जो है काई स्क्वायर टेस्ट. इसमें हम लोगों को देखना है पियर्सन का काई स्क्वायर टेस्ट का पी वैल्यू. बाकी ये देखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हम देखेंगे ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है 21.678, इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट स्टैट. और इसके लिए हम लोगों को क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होगी जो टेबल से निकालते हैं, पर वो फिलहाल उसमें नहीं जा रहा हूं मैं. टेबल से देखना होगा वो डीएफ वगैरह कंसिडर करके. और यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड है, ये होती है हमारी पी वैल्यू, और ये आ रही है 0.00, मीन्स इट इज लेस देन 0.05, इसलिए नल इज रिजेक्टेड. नल में क्या बोला है, देयर इज नो एसोसिएशन. There is no association between income and phone type. और ये चीज रिजेक्ट हुई है, मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड फोन टाइप. सिग्निफिकेंट है यानी रिलेशनशिप तो है इनकम और फोन टाइप का. यहाँ से चेक कर लेते, थोड़ा सा पता चल जाएगा.
आप देखेंगे इस तरफ है हमारा इनकम। इसको हम क्लस्टर्ड बार चार्ट या फिर इसको मल्टीपल बार चार्ट भी कहते हैं। यह है इनकम और ये है फ्रीक्वेंसीज हमारे, और ये जो बार्स है ये है हमारे फोन टाइप, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आप देखेंगे इनकम लेस देन 5 लाख इनकम के लिए सबसे ज्यादा फोन किसके है, तो बजट के। और लग भी रहा है जिसकी सैलरी ही कम है, इनकम ही कम है, वो बजट फोन ही लेगा ना, इकोनॉमी फोन ही लेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनका इनकम कम है उसमें मिड सेगमेंट फोन लेने वाले भी अच्छे खासे लोग हैं। और ऐसे लोग जिनका इनकम कम है पर फिर भी लग्जरियस फोन लेने वालों की संख्या भी है। ओके, वो काउंट कितना आ रहा है मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको लेबल इसमें एग्जिबिट करके, पर फॉर द टाइमिंग एज यू कैन रीड इट एंड इंटरप्रेट इट, आप देखेंगे कि जिनका इनकम 5 to 10 लाख है ये मिड साइज के जो फोन्स है वो यूज करते हैं, और एट द सेम टाइम प्रीमियम एंड के भी हैं और लो एंड के भी हैं। और आप यहाँ पे इंटरेस्टिंगली देख सकते हो जिनका इनकम ज़्यादा है वो प्रीमियम फ़ोन लेते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जिनका इनकम ज़्यादा है उसमें बजट फ़ोन लेने वालों की भी संख्या है और मिड सेगमेंट फ़ोन लेने वालों की भी संख्या है। काउंट्स देख लेते हैं एक बार इसको। हम्म, है अच्छे खासे काउंट्स है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं एसपीएसएस में ये समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास और एक एसपीएसएस की फाइल है, आपको शेयर भी कर दूंगा मैं। विलिंगनेस टू परचेस पिज़्ज़ा, ये केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं एज और विलिंगनेस टू परचेस पिज़्ज़ा। इसमें चेक कर लेते हैं एक बार। एज की 5 कैटेगरीज ली है, अप टू 17, 18 to 24, 25 to 35, 36 to 45 एंड अबव 45। एक थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लेंगे कि 6 के ऊपर जनरली कैटेगरीज नहीं लेते हैं। ओके, ये एक स्टैटिस्टिक्स में रूल कहा जाता है, रूल ऑफ थंब बोलेंगे हम लोग। जनरली 6 के ऊपर कैटेगरीज नहीं लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे एज में 5 कैटेगरीज ली हमने, और कितना पैसा पिज्जा पे खर्च करना चाहते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। ये भी चेक कर लेते हैं, 4 कैटेगरीज हैं। 300 रुपये से कम खर्च करना चाहते हैं। उसके बाद 300 से 500 रुपये, 500 से 800 और अबो 800 रुपये। तो हमको ये चेक करना है कि कौन से एज के लोग ओके कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, और सही में एज और विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन पिज्जा इसके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है क्या। तो इस पर्टिकुलर सेंस में मेरा नल क्या हो जाएगा, देर इज नो एसोसिएशन। देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, इसको जनरली रिलेशनशिप नहीं लिखते हैं, एसोसिएशन लिखते हैं। देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एज एंड willingness to spend on pizza. दिस इज अवर नल हाइपोथेसिस। चलिए परफॉर्म करते हैं एक बार। chi square test, analyze descriptive statistics, then cross tabs, देन एज विलिंगनेस ट्रांसफर कर दिया मैंने। स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर चाहिए। उसके बाद सेल्स ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज चाहिए हमको, और चाहिए हमको क्लस्टर्ड बार चार्ट। ओके प्रेस करेंगे। केस प्रोसेसिंग समरी देख लेते हैं। टोटल सैंपल साइज है 80 का। एसोसिएशन किसकी देख रहे हैं, तो एज और विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन पिज्जा, ये दो वेरिएबल की एसोसिएशन। ये स्टार जो है ये इंडिकेट करता है एसोसिएशन चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये है हमारा कॉन्टिजेंसी टेबल, ये वाला। दिस इज आवर कॉन्टिजेंसी टेबल जिसको क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं। और ये है हमारी
ओ आई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और नीचे है ई आई, हर एक पर्टिकुलर कैटेगोरिकल रिस्पॉन्स के लिए। ओ आई ई आई, ओ आई ई आई। तो ये स्पेसेस ने ई आई हमको रेडीली कैलकुलेट करके दे दिए हैं। सिमिलरली यहाँ और यहाँ। ओके, अभी देखते हैं का स्क्वायर टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या हो रहा है, ये है हमारी का स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू। सिर्फ ये चेक करना है हमको। p वैल्यू आ रही है 0.00 which is less than 0.05, therefore null is rejected। यानी ये एसोसिएशन जो है इट इज सिग्निफिकेंट, देयर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन। और नल में क्या बोला है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एज एंड विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन पिज्जा। ओके, एज और विलिंगनेस टू स्पेंड पिज्जा, इसमें एसोसिएशन है। एसोसिएशन है तो चेक करते, यहां से पता चल जाएगा। ओके, ये मेरा क्लस्टर्ड बार चार्ट है, आप देख सकते हैं। ये है एज, हमारी 5 कैटेगरीज, 1 2 3 4 5 कैटेगरीज है। ये है हमारे काउंट्स यानी फ्रीक्वेंसीज, और ये जो बार्स है ये है हमारा विलिंगनेस टू स्पेंड। देखते हैं 17 साल से कम के उम्र के जो लोग हैं सबसे ज्यादा पैसा कितना खर्च करने के लिए तैयार है। ये ग्रीन, ग्रीन यानी क्या, 300 से 500 रुपए खर्च करना चाहते हैं 17 साल से कम वाले लड़के। उस या रेस्पोंडेंट या कस्टमर्स आप बोलेंगे। 18 से 24 में जो लोग हैं उसमें भी फिर से 300 से 500 रुपए ही खर्चा करना चाहते हैं पिज्जा परचेस करने में। उसके बाद 25 से 35 वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं उसमें भी यही दिख रहा है कि लगभग 300 से 500 रुपए पिज्जा पे खर्च करना चाहते हैं। पर ये बार जो है, ये वाला बार जो है 500 से 800 वाला, यहाँ पे बिल्कुल ही गायब है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा था पर ये बढ़ चुका है अभी, यहाँ से ये यहाँ गया है। यानी क्या, 25 से 35 वाले एक तो 300 से 500 या फिर 500 से 800 रुपए खर्च करना चाहते हैं पिज्जा खरीदने में। 36 से 45 वाले, ये भी दो ही कैटेगरीज में बिलीव करते हैं, यानी 300 से 800 रुपए खर्च करना चाहते हैं ये। और बात करते हैं अबो 45, जिनका एज ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा 500 से 800 रुपए ये, और 800 से ऊपर खर्च करना चाहते हैं। यानी क्या, एज और विलिंगनेस टू स्पेंड, इसका कनेक्शन है। देयर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन एज एंड विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन परचेसिंग पिज्जा। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट तो हमने कवर कर लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट टेस्ट में, जो है कोरिलेशन एनालिसिस। chi-square we are done with. Now we are going to perform correlation analysis। चलिए परफॉर्म करते हैं। ये फ्लो रहेगा हमारा कोरिलेशन एनालिसिस का। पहले रिलेशनशिप्स यानी क्या और कितने प्रकार की होती है वो देखेंगे। आपने कोरिलेशन के सेंस में कोवैरियंस एनालिसिस भी सुना होगा, वो मैं बता देता हूँ क्या है क्विकली। उसके बाद कोरिलेशन एनालिसिस के बेसिक्स, फिर कोरिलेशन एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हाइल परफॉर्मिंग कोरिलेशन एनालिसिस यूजिंग एसपीएसएस, और स्कैटर प्लॉट जो एक डायग्रामेटिक या विजुअल प्रेजेंटेशन होता है कोरिलेशन एनालिसिस का, वो एसपीएसएस में कैसे तैयार करते हैं वो देखेंगे। पहले बात करते हैं रिलेशनशिप्स यानी क्या। ये मैंने एंडी फील्ड की किताब से ही लिया हुआ है रेफरेंस, और मैंने ये जो आपको रिकमेंड की थी। बात करते हैं रिलेशनशिप, जब हम एग्जामिन करते हैं तो एग्जैक्टली कौन से इश्यूज को एड्रेस करते हैं। जब भी कोई रिसर्च स्कॉलर रिलेशनशिप, एक बात कहीं पे नोट करके रखते हैं, जब भी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो मोस्टली इसमें दो ही चीजें हैं। बेसिक जो है ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग का,
एक है कंपैरिजन पे और दूसरा है रिलेशनशिप पे। ये दो ही मेजर चीजें हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। कंपैरिजन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, यानी एक ग्रुप का हमने देखा यूनिवेरिएट, दो ग्रुप का हमने देखा बाइवेरिएट की अलग अलग प्रकार की टेस्ट, मोर देन टू ग्रुप का वेरिएबल्स का जिसको हम मल्टीवेरिएट कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है। और अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो है रिलेशनशिप की, और इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं रिलेशनशिप एनालिसिस में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें मोस्टली दो ही तरीके का अप्रोच होता है, एक रिलेशनशिप एग्जामिन करना या फिर कंपैरेटिव स्टडीज करना। अभी बात हो रही है रिलेशनशिप में क्या क्या आता है। रिलेशनशिप में पांच चीजें आती हैं। सबसे पहला, हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई। ये दोनों वेरिएबल में आपस में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है क्या, ये मुझे चेक करना है। तो ऑब्वियसली मैं को रिलेशन एनालिसिस करूंगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, मुझे ये चेक करना है कि नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, ओके, और एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक्सक्यूज मी, जिसको हम कहते हैं मार्क्स। ये मेरा एक वेरिएबल हो गया एक्स, और ये मेरा दूसरा वेरिएबल हो गया वाई। ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स, एक्सक्यूज मी, मैंने इफ सपोज 500 रिस्पोंडेंट्स का डेटा लिया है। ओके, आप रोज कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, या वीकली टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना हो जाता है आपका पढ़ाई का, और आपने जो लास्ट यूनिट टेस्ट या फिर कोई भी एग्जाम फेस की थी उसमें आपको कितने मार्क्स आए। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो ज़्यादा देर तक पढ़ाई करता है क्या उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मुझे ये चेक करना है। तो ऑब्वियसली मैं जो करूँगा इसी को मैं को रिलेशन एनालिसिस कह रहा हूँ। मेरे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स है। पहला रिस्पोंडेंट बोल रहा है कि मैं रोज 3 घंटे पढ़ाई करता हूँ, या फिर मैं हफ्ते में सिर्फ 13 घंटे पढ़ाई करता हूँ। दूसरा बोल रहा है मैं वीक में 15 घंटे पढ़ाई करता हूँ। तीसरा बोल रहा है कि सम हाउ 7-8 घंटे हो जाता है एक वीक में। ओके, इस तरीके से हमारे पास डेटा जो है नंबर ऑफ आवर्स में है, यानी न्यूमेरिक है। मार्क्स आपको कितने आए हैं, ये भी नंबर्स, 100 में से आपको कितने, जैसे 73, ये बोल रहा है कि 100 में से मुझे 67 आया। लाइक वाइज ये दोनों के दोनों नंबर में है, और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक्स और वाई में आपस में कोई रिलेशनशिप है, तो इसको हम कहते हैं को रिलेशन एनालिसिस। अभी रिलेशनशिप में दूसरा मुद्दा क्या, हम पहले मुद्दे में देख रहे हैं कि वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। दूसरा मुद्दा, अगर रिलेशनशिप है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो रिलेशनशिप कितनी तगड़ी है, या उसकी इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड कितना गहरा है। तीसरा, वो रिलेशनशिप का डायरेक्शन क्या है। ये तीसरा इशू हम कोरिलेशन में देखते हैं। डायरेक्शन यानी वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। उसके बाद ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है क्या, यानी इसी को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस का, कि जो रिलेशनशिप की बात हो रही है एक्स और वाई में रिलेशनशिप है, तो ये सिग्निफिकेंट है क्या, वेदर इट इज सिग्निफिकेंट। स्टैटिस्टिकल एविडेंस चाहिए ना, इसके लिए जो करेंगे उसी को टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कहेंगे। और अगर वो सिग्निफिकेंट है तो क्या हम प्रिडिक्शन पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन में फर्क क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। कोरिलेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक है नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, और ये है हमारा मार्क्स अचीव्ड या मार्क्स ऑप्टेन। कोरिलेशन क्या बोल रहा है, ये है हमारा एक्स वेरिएबल, ये है वाई, ये दोनों में रिलेशनशिप है क्या, और वो सिग्निफिकेंट है क्या। ये अगर प्रूव हो गया
तो रिग्रेशन क्या बोलता है कि हम कितनी देर तक पढ़ाई करेंगे तो हमको कितने मार्क्स आएंगे, मुझे प्रेडिक्शन करना है यहाँ पे। मैं अगर मैं अगर हफ्ते में 25 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो मेरे कितने मार्क्स आने के चांसेस है, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, ये प्रेडिक्शन की बात हो रही है। कोरिलेशन में सिर्फ ये चेक किया जाता है नंबर ऑफ स्टडी आवर्स और मार्क्स में रिलेशनशिप है क्या। और रिग्रेशन बताता है कि कितने एक्स में आप कितना चेंज करेंगे तो वाई में कितना चेंज आएगा, ये बताने का काम रिग्रेशन एनालिसिस करता है। तो इन जनरल रिलेशनशिप में हम ये 5 इश्यूज को एड्रेस करते हैं। मैं समअप कर रहा हूँ। हम चेक करते हैं whether there is any relationship exists between two variables, two or more variables x and y। डायरेक्शन ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या है, आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, या फिर ज्यादा देर तक मार्क्स पढ़ाई करेंगे तो क्या मार्क्स कम आएंगे। मैं ये और ठीक से समझा रहा हूँ, डायरेक्शन यानी क्या, डिग्री भी मैं समझा देता हूँ, इंटेंसिटी की ये रिलेशनशिप कितनी साउंड है, कितनी तगड़ी है, उसका इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड कितना है। जनरलाइजेशन यानी hypothesis testing whether the relationship is significant, and eventually is prediction, this is what is called as your regression analysis। Can we use this particular relationship to predict the value of dependent variable using the value of independent variable। बात करते हैं मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप्स की। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है कोवैरियंस एनालिसिस और दूसरा होता है कोरिलेशन एनालिसिस। समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं कोवैरियंस यानी क्या। देखिए हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, और आपको वैरियंस का कंसेप्ट तो पता चल गया है। आपके पास एक्स डेटा सीरीज है और वाई डेटा सीरीज है। वही नंबर ऑफ स्टडी आवर्स को मैं एक्स बोल रहा हूँ, और यहाँ पे है मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे इफ सपोज डेली हम लोग पूछ रहे हैं कि कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं, तो कोई बोल रहा है 1 घंटा, कोई बोल रहा है 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 3.5 घंटा बोल रहा है, कोई बोल रहा है 4 घंटा, कोई बोल रहा है 2.5 घंटा। इस तरीके से हमारे पास डेटा है। और मार्क्स कितने आए, तो 100 में से इफ सपोज 54, 37, उसके बाद 91, इफ सपोज 72, लाइकवाइज ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। इफ सपोज 49 एंड 63। अभी कोवरेंस क्या बोल रहा है, ये डेटा सीरीज का हम मीन निकाल लेंगे एक्स बार, और मीन निकाल के डेविएशंस निकाल लेंगे, यहाँ पे डी, ये वाला डेविएशन आ जाएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और इसका वैरिएंस आ जाएगा। ये हो गया वैरिएंस एक्स का, वैरिएंस एक्स डेटा सीरीज का। उसी तरीके से यहाँ पे मैं एक्स बार निकाल रहा हूँ, ये एक्स बार 1, ये एक्स बार 2, या फिर ये इसका मीन आ गया तो इसका भी एस टी आएगा और इसका भी वैरिएंस वाई आएगा। तो हम लोग कोवरेंस में क्या चेक करते हैं कि ये वैरिएंस और ये वैरिएंस साथ में जा रहा है क्या, यानी ये डेटा सीरीज और ये डेटा सीरीज का वैरिएंस सेम है क्या। वैरिएंस सेम है यानी ये आपस में मूव हो रहे हैं और एक दूसरे पे इम्पैक्ट रख रहे हैं। अगर वैरिएंस सेम नहीं है तो हम बोलेंगे दोनों चीजों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। पर अगर दो चीजें को वैरी करती है तो हम कहेंगे हाँ कि ये दोनों जो वेरिएबल्स है ये आपस में रिलेटेड है। अभी कोवरेंस का एक लिमिटेशन क्या है, बहुत ज्यादा सुनने में क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि कोवरेंस एक मेजर ऐसा है कि जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। आपको मालूम होगा शायद कार्ल पियर्सन का आर, जिसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं हम लोग, जो अभी पढ़ेंगे ही। ये आर की वैल्यू हमेशा ही -1 और +1 के बीच में आती है, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड्स। और ये थ्रेशोल्ड का इंटरप्रिटेशन दिया गया है कि आर की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम कहेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप। आर की वैल्यू अगर +1 आती है तो हम कहेंगे कि देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। पर कोवरेंस का ऐसा नहीं है, कोवरेंस की वैल्यू ये रेंज में नहीं है, वो कुछ भी आ सकती है। तो उसको इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये वैल्यू का मतलब क्या है, क्या दोनों में आपस में कोरिलेशन है। इसलिए कोवरेंस एनालिसिस इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, और यही लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग जनरली कोरिलेशन एनालिसिस का स्टडी करते हैं। कोवरेंस एनालिसिस में और एक प्रॉब्लम ये है कि आपके
दोनों के दोनों वेरिएबल्स का एक्सप्रेसिंग यूनिट सेम होना चाहिए। यानी क्या, आप देखेंगे मेरे पास एक एक एक्स है जो है नंबर ऑफ स्टडी इयर्स, जो एक्सप्रेस हो रहा है नंबर ऑफ आवर्स में, और दूसरा है मेरे पास नंबर ऑफ मार्क्स जिसको मैं बोल रहा हूँ वाई। और ये तो यूनिट लेस है पर फिर भी नंबर है ना, मार्क का कोई यूनिट थोड़ी ना होता है। आप देखेंगे इसका यूनिट है और इसका यूनिट नहीं है, तो ऐसी जगह पे कोवरेंस निकालना मुश्किल जाता है। कोवरेंस क्या बोलता है, आपके दोनों वेरिएबल्स का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस और आपके सेल्स, यानी रिसर्च क्वेश्चन क्या है, एडवर्टाइजिंग का खर्चा बढ़ाने के बाद सेल्स बढ़ते हैं क्या? आप देखेंगे ये मेरा एक्स वेरिएबल है, ये मेरा वाई वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल मैंने रुपीस में एक्सप्रेस किया है और वाई वेरिएबल भी रुपीस में एक्सप्रेस किया है। दोनों के दोनों वेरिएबल्स एक ही एक्सप्रेसिंग यूनिट में है, दैट इज रुपीस। तो ऐसे वक्त कोरिलेशन का कोवरेंस एनालिसिस हो सकता है, पर हर बार हमारे पास ऐसे ही वेरिएबल्स होंगे जरूरी नहीं है ना। हमारे पास तो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, उसके एक्सप्रेसिंग यूनिट अलग अलग होते हैं, या कभी कभी तो यूनिट भी नहीं होते हैं। तो ऐसे वक्त फिर कोरिलेशन एनालिसिस का रिकमेंडेशन किया गया है। तो जाते हैं सीधा कोरिलेशन एनालिसिस पे, समझने की कोशिश करते हैं। कोरिलेशन में हम लोग एक्चुअली रिलेशनशिप एग्जामिन करते हैं, और हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, और ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स एक तो मेजर्ड है, कंटिन्यूअस है, या फिर स्केल वेरिएबल्स है। यानी क्या, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स इट शुड बी न्यूमेरिक। आपको काई स्क्वायर में याद होगा हमारे पास x1 और x2 ये दो वेरिएबल्स थे, और ये दोनों नॉमिनल थे। तो इस वक्त हम लोग जो करते हैं वो है काई स्क्वायर। पर x और y ये दोनों के दोनों न्यूमेरिक है, तो इस वक्त हम लोग जो टेस्ट करते हैं इसको कोरिलेशन कहते हैं। एक चार्ट दिखा देता हूँ जिससे कोवरेंस और कोरिलेशन का डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हमारे पास सेम वेरिएबल है पर ग्रुप्स अलग है। ओके, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ फादर की हाइट का इन्फ्लुएंस सन की हाइट पे होता है क्या, यानी वेदर सन्स हाइट इज डिटरमाइंड बाय फादर्स हाइट। यानी पिताजी की हाइट ज्यादा है तो क्या सन की भी हाइट ज्यादा होती है? ऐसा कोई रिलेशनशिप है क्या, ये अगर मुझे जानना है तो आप देखेंगे दोनों केस में मेरे पास हाइट ये वेरिएबल है। वो सन का और फादर ये दोनों अलग ग्रुप्स है पर हाइट ही है। और मैंने ऑब्वियसली इसके जो भी है आपके फीट या इंचेस वो सेम रखे हैं। तो ये जो मैं पार्ट कर रहा हूं इसी को हम कोवरेंस कहते हैं। अभी मैं और एक केस ले रहा हूं जिसमें सेम ग्रुप है पर डिफरेंट वेरिएबल्स है। जैसे एक ग्रुप मैंने लिया है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की हाइट और स्टूडेंट का वेट मैं चेक करना चाहता हूँ वेदर हाइट एंड वेट्स आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। जिसकी हाइट ज्यादा होती है क्या उसका वेट ज्यादा होता है, ये मुझे चेक करना है। ऐसे वक्त मैं जो करूंगा, ये पूरा का पूरा चार्ट जो है ये पर्टिकुलर केस में आप कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हो, पर कोवरेंस सिर्फ यहाँ पे आप कर पाओगे। इसलिए कोवरेंस एनालिसिस बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि कोवरेंस एक कोरिलेशन का ही पार्ट है। तो करते वक्त हम जनरली कोरिलेशन एनालिसिस ही करते हैं, क्योंकि कोरिलेशन एनालिसिस में आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कोरिलेशन को कॉजेशन नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो बात कर रहे थे कि स्टडियर्स और हमारे मार्क्स, ये एक्स वेरिएबल है ये वाई वेरिएबल है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते अगर एक्स और वाई इसमें रिलेशनशिप प्रूव हो चुकी है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ज्यादा देर तक पढ़ाई करने की वजह से ही मार्क्स आए हैं। ओके, इसमें बाकी भी तो वेरिएबल्स हो सकते हैं ना, कि जैसे आपका आईक्यू लेवल क्या है, यू नो, आपका सिलेबस कितना बड़ा है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि आपके मार्क्स उसके ऊपर, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपका मेमोरी कितना तगड़ा है एंड ऑल। और इसलिए हम लोग कोरिलेशन को कॉजेशन नहीं कह सकते हैं।
बात करते हैं रिलेशनशिप और एसोसिएशन में फ़र्क क्या है, वो तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। कोरिलेशन हम न्यूमेरिक वेरिएबल्स पे परफॉर्म करते हैं, जैसे हाइट और वेट, ये वेरिएबल्स है हमारे पास एक्स और वाई, तो हम जो करेंगे उसको कोरिलेशन एनालिसिस कहेंगे। एसोसिएशन की टेस्ट काय स्क्वायर कब करेंगे, जब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है, जैसे हेयर कलर एंड आईबॉल कलर। बात करते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। हम लोग जब कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी तगड़ी ये रिलेशनशिप है, कितनी पावरफुल ये रिलेशनशिप है, ये जानने के लिए हम मेजर ऑफ रिलेशनशिप कंप्यूट करते हैं, जिसको कहा जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता देता हूँ 1 मिनट में। एक होता है आपका कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कार्ल पियर्सन्स आर। देन स्पीयरमन का, स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको रो से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक फाई कोएफिशिएंट होता है, और एक क्रैमर वी, ऐसे बहुत सारे कोएफिशिएंट्स होते हैं। ओके, तो हम लोग जो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में फोकस कर रहे हैं, ये सब नॉन पैरामेट्रिक है। ये जो है कार्ल पियर्सन का, ये पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और सबसे ज्यादा कॉमनली हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं पैरामेट्रिक की। ऐसी बात नहीं कि ये होती ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कॉमनली ये करते हैं, डेटा पैरामेट्रिक अगर है तो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मैं कंफाइन कर रहा हूँ मेरे डिस्कशन सिर्फ यहाँ तक। और बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कोरिलेशन एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी मैं और थोड़ा सा थ्योरी बता ही रहा हूँ आपको, उससे थोड़ा सा दायरा भी पता चल जाएगा। मैं एक्चुअली पूरा एक 6 दिन का वर्कशॉप लेता हूँ, 6 डेज, जिसमें मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आधा पार्ट पढ़ा सकता हूँ 6 डेज का। और एक एडवांस लेवल का होता है कोरिलेशन का, जो फिर से 6 दिन का होता है मेरा ये वर्कशॉप। इसमें मैं एडवांस लेवल का कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ाता हूँ। तो ये इतना कॉम्प्रहेंसिव है, पर मैं अभी जैसे बिगिनर्स का वर्कशॉप है, तो बिगिनर के लेवल पे आपको कार्ल पियर्सन की टेस्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये पैरामेट्रिक टेस्ट में आपको करके दे रहा हूँ। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, जो हम लोग कार्ल पियर्सन के आर की बात कर रहे हैं, ये दो चीजें इंडिकेट करेगा, एक डायरेक्शन पॉजिटिव है कि निगेटिव, और दूसरा है डिग्री। बात करते हैं डायरेक्शन यानी क्या, समझा देता हूँ। देखिए, हमारा जो कार्ल पियर्सन का आर आएगा, ये एक तो जीरो आएगा, या फिर निगेटिव में आएगा, या फिर ये पॉजिटिव में आएगा। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इफ सपोज योर आर इज प्लस 0.7, तो हम कहेंगे ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, आपके पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई। एक्स अगर बढ़ता है तो वाई भी बढ़ेगा, अगर एक्स कम होता है तो वाई भी कम होगा। यानी क्या, दोनों के दोनों वेरिएबल्स आपके एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हमारे थे सेल्स फिगर्स। इफ सपोज हमारा आर आ रहा है यहाँ पे 0.7, ये प्लस है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप एडवर्टाइजिंग बढ़ाओगे, ये एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वैसे ही सेल्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स एक्सपेंसेस। इसके एग्जैक्टली उल्टा वो होता है निगेटिव कोरिलेशन। मेरे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ तो वाई कम हो रहा है, या फिर मैं एक्स को कम कर रहा हूँ तो वाई बढ़ रहा है। यानी दोनों के दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, एज यू कैन सी। दोनों के दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा मेरे जो वेरिएबल्स है, बोथ द वेरिएबल्स आर निगेटिवली कोरिलेटेड। एक सिंपल सा एग्जांपल, इफ सपोज आपको आपके गाड़ी की स्पीड, और आपको जहां कहीं भी पहुंचना है उसका टाइम, टाइम टू रीच एट डेस्टिनेशन, जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम होगा,
या फिर जैसे आप स्पीड कम करोगे वैसा ही टाइम ज्यादा लगेगा आपको। यानी क्या, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स ये निगेटिवली कोरिलेटेड है। उसी तरीके से सपोज मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर और कपड़े सूखने सूखने का टाइम, ड्राइंग टाइम। तो इफ सपोज बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो कपड़े सूखने का टाइम कम लगेगा ना। अगर ये टेम्परेचर ही कम है तो कपड़े सूखने का टाइम बढ़ेगा। यानी दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। इस वक्त हम इसको कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव निगेटिव में फर्क क्या है? और एक होता है तीसरा जीरो। जीरो मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी मेरा इनकम और मेरे मार्क्स कितने आते हैं गेटिंग मी? माय इनकम और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम, ये दो वेरिएबल्स है मेरे पास। तो ये दोनों का वैसे कोई संबंध नहीं होता है ना। आप कितनी पढ़ाई करते हैं, आपका होशियारी कितना है, ये दोनों की रिलेशनशिप आप समझ सकते हैं। पर ऐसे दो वेरिएबल जिसमें कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं होता है, तो हम लोग इफ सपोज बोल रहे हैं कि सेंसेक्स के फिगर्स और आपका आईक्यू लेवल अभी सेंसेक्स कितना भी कम ज्यादा हो, क्या आपका आईक्यू लेवल कम ज्यादा होगा? नो वे। ये दोनों के दोनों वेरिएबल जो है इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, मींस आर इज जीरो। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती है रिलेशनशिप में। कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, इसकी वैल्यू रेंज होती है -1 और +1 के बीच में हमेशा ही। और ये है इसका इंटरप्रिटेशन। आर की वैल्यू अगर जीरो आती है तो हम कहेंगे देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर आर की वैल्यू जीरो से कम है तो हम कहते हैं देर इज निगेटिव रिलेशनशिप। आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम इसको कहते हैं देर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। बात करते हैं, अगर आपकी आर की वैल्यू, जो भी दो वेरिएबल्स आपके पास है एक्स और वाई, आपको एसपीएसएस ये आर की वैल्यू एक्स और वाई की इनपुट फीड करने के बाद ये कैलकुलेट करके देगा। यहाँ पे कुछ तो भी फिगर आएगा। वो अगर 0 और -0.5 के बीच में है तो हम कहेंगे वीक निगेटिव कोरिलेशन है। और उसी तरीके से यहाँ इसके बीच में आता है तो हम कहेंगे वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। उसके बाद -0.5 -8.8 के बीच में है तो हम कहेंगे मॉडरेट निगेटिव। इस तरह मॉडरेट पॉजिटिव, इसके बीच में अगर आपकी आर की वैल्यू आती है। अगर ये इसके बीच में आती है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बट निगेटिव। वैसे इसी तरफ इस तरफ अगर आता है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। और ये एक संचेती कपूर की किताब है, उसमें ये चार्ट, वहां से मैंने ये चार्ट लिया था। आप देख सकते हैं परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन अगर आपकी आर की वैल्यू +1 आती है, निगेटिव अगर -1 आती है। हम कहेंगे वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कब? जब आपका आर की वैल्यू 0.9 और उसके ऊपर है, और निगेटिव 0.9 और उससे ऊपर है। फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन 0.75 टू 0.9, -0.75 टू -0.9। इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसको हम थ्रेशोल्ड लिमिट्स कहते हैं। तो हमको आर की वैल्यू एसपीएसएस कंप्यूट करके देगा और ये चार्ट से पता चल जाएगा, जो मैं बात कर रहा था स्ट्रेंथ की, कि हमारी रिलेशनशिप कितनी पावरफुल है, कितनी स्ट्रांग है। ओके, इसका डिग्री क्या है, इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो हमको इस चार्ट से पता चल जाएगा। बात करते हैं कोरिलेशन के प्रकार की, कि कितने प्रकार का कोरिलेशन एनालिसिस होता है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हैं। एक पहला जो रिलेशनशिप होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। और दूसरा एक प्रकार होता है जिसमें हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे बात होती है शेप की। ये क्या है समझा रहा हूं मैं। सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल, ये पूरा ही चार्ट क्विकली मैं समझा देता हूँ। पहले बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन यानी क्या। देखिए, लीनियर का मतलब है आपके पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, और ये आपके वैल्यूज है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एक्स की और वाई की। इसका आपने टू डायमेंशनल एक चार्ट बना लिया। इस तरीके से इसको हमने प्लॉट कर लिया। ये है हमारा एक्स और ये है वाई। हमारा पहला है 1 और 8। पहला 1 आ रहा है यहाँ पे और 8 आ रहा है सपोज यहाँ पे, 8 यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा है 2 और 16, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 16।
ये मैं कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते जा रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने के बाद अगर मैं फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करता हूँ, जिसको कहते हैं ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन अगर स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में फॉर्म होती है तो इसको हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। अगर आप ये पूरे के पूरे डेटा पॉइंट्स, अभी तो ये हमने 6 ही लिए ना, हमारा तो सैंपल 500 का वक्र होता है, तो हम इसको अगर प्लॉट करते हैं तो उसी को स्कैटर प्लॉट कहा जाता है, जो हमको स्पेसेस तैयार करके देगा। ये स्कैटर प्लॉट में जितने भी आपके पॉइंट्स ओके प्लॉट हो रहे हैं और इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न उभर के आ रहा है इस तरीके से, तो हम इसको कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। अगर ये पैटर्न इस तरीके से फॉर्म हो रहा है कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने के बाद, आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्वीलिनियर प्लॉट्स बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशनशिप। यानी ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने के बाद अगर स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट्स मूव हो रहे हैं तो उसको कहेंगे लीनियर, और ये कर्वीलिनियर के फॉर्म में अगर फॉर्म हो रहे हैं तो हम इसको कहेंगे नॉन लीनियर। लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन याद रखिएगा, नॉन लीनियर मीन्स कर्वीलिनियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आपका स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मूव हो सकता है या फिर इस तरीके से भी मूव हो सकता है प्लॉट करने के बाद। नॉन लीनियर जैसे मैं बता रहा था, ये हाइपरबोलिक या फिर पैराबोलिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जा सकते हैं, इस तरीके से प्लॉट हो सकते हैं ये, तो इसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ऐसी शेप फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप। सो आपका डायरेक्शन एक्स और वाई का मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज लीनियर। देन आपका प्लॉट का शेप जो है इट इज मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज कॉल्ड एज लीनियर। एंड दिस इज नॉन लीनियर, एज यू कैन सी कर्वी लीनियर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर। तो अभी हम लोग जो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में करने वाले हैं वो है लीनियर एनालिसिस। नॉन लीनियर आउट ऑफ द स्कोप है क्योंकि ये एडवांस स्टैटिस्टिक्स में जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो बास्केट है कोरिलेशन का, जिसको हम कहते हैं सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल। ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। पहले बात करते हैं सिंपल कोरिलेशन। आपके पास दो वेरिएबल्स है और एक्स और वाई, बस दैट्स इट। एडवर्टाइजिंग, सेल्स, आपका आईक्यू और मार्क्स, दो ही वेरिएबल्स है और आप दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है क्या ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको सिंपल कोरिलेशन कहेंगे। This is x and this is y, whether they are closely related with each other. If you wish to examine this, then this is what is called as simple collinear analysis. बात करते हैं पार्शियल की। पार्शियल में क्या हो रहा है, आपके पास दो वेरिएबल्स है x और y, आप इनके बीच में रिलेशनशिप चेक कर रहे हो। इफ सपोज आपका ये वेरिएबल जो है, x वेरिएबल है आपका नंबर ऑफ स्टडी आवर्स और y वेरिएबल्स है मार्क्स। ओके आप इनके बीच की रिलेशनशिप चेक कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम मार्क्स को इन्फ्लुएंस करने वाले और भी तो वेरिएबल्स है। ये इसमें हो सकता है कि आपका आईक्यू लेवल जो मार्क्स पे इन्फ्लुएंस रखता है, या फिर होम एनवायरनमेंट, घर का माहौल कैसा है जो मार्क्स को अफेक्ट करेगा। तो ये वेरिएबल्स भी इस पर्टिकुलर वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, पर यू आर कीपिंग और होल्डिंग दिस वेरिएबल्स कांस्टेंट and you are simply focusing on examining relationship between these only two variables. This is what is called as partial correlation, और हम इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में partial correlation नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल कर रहे हैं। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कोरिलेशन में करने लायक, यहाँ से आगे अगर आपको कुछ सीखना है तो इतने सारे फ्लेवर्स है कोरिलेशन एनालिसिस के। उसके बाद है मल्टीपल कोरिलेशन। आप देख रहे हैं दो से ज्यादा वेरिएबल्स है आपके पास, आपका ये x है, y है, z है और ये चौथा वेरिएबल भी है a। ये चारों को आप एक साथ एग्जामिन करना चाहते हो तो इसको कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। यानी क्या, आपका x आवर्स, y मार्क्स, बाद में z आईक्यू और a, सॉरी स्मॉल a, यह है आपका होम एनवायरनमेंट। ये चारों की रिलेशनशिप आप एक साथ स्टडी करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ऐसे रिलेशनशिप को, उससे भी बेटर एग्जांपल कि मुझे चेक करना है हाइट ऑफ सन, मुझे ये चेक करना है
कि हाइट ऑफ सन और हाइट ऑफ फादर, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स और इसको मैं बोल रहा हूँ वाई, कि फादर की हाइट का इन्फ्लुएंस सन की हाइट पे होता है क्या। तो मैं जो कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो एक चीज है ही, पर इसके साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाइट ऑफ सन और हाइट ऑफ मदर, जिसको मैं कह रहा हूँ जेड वेरिएबल, यानी मैं इसका इन्फ्लुएंस, सॉरी फादर, फादर का इन्फ्लुएंस सन की हाइट पे और मदर के हाइट का इन्फ्लुएंस सन की हाइट पे, ये एक ही गो में एग्जामिन करना चाहता हूँ मैं, तीन वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है क्या। तो इसको मैं कहूंगा मल्टीपल कोरिलेशन। गॉट इट। और इसमें फिर तीन चार पाँच छः जितने भी वेरिएबल्स आपको लेना है आपस में, वो आप एग्जामिन कर सकते हो रिलेशनशिप। बात करते हैं कोरिलेशन को मेजर कैसे करते हैं। इसकी दो मुख्य मेथड्स है, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरी है मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल में हम बात करते हैं स्कैटर डायग्राम की, या स्कैटर प्लॉट कहते हैं इसको एसपीएसएस में, ये मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद सिंपल ग्राफ मेथड भी थी, पर ये आउटडेटेड हो चुकी है, आज कोई यूज नहीं करता इसको। उसके बाद आपके मैथमेटिकल मेथड्स या मैथमेटिकल मेजर्स जिसको कहते हैं, एक है आपका कार्ल पियर्सन का आर, स्पीयरमन का रो, पॉइंट बिसेरियल, बिसेरियल भी होता है, बिसेरियल कोएफिशिएंट, पॉइंट बिसेरियल, ये दो है, और फाई कोरिलेशन। ये इतने सारे होते हैं इसमें, और कुछ प्रकार है इसमें, आपने शायद लॉजिस्टिक कोरिलेशन के बारे में सुना होगा, लॉजिस्टिक्स कोरिलेशन एंड लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन, ऐसे और भी कुछ फ्लेवर्स है कोरिलेशन एनालिसिस में। तो कंफ्यूजन ना बढ़ाते हुए सीधा सीधा फोकस करेंगे सिंपल कोरिलेशन यानी क्या, और एसपीएसएस में ये परफॉर्म कैसे करते हैं। सिंपल का मतलब आपको मालूम है, दो ही वेरिएबल्स है, इसके बीच में आपस में कोरिलेशन एक्सिस्ट होती है या नहीं है, वो हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस एसपीएसएस में परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले स्कैटर प्लॉट, फिर कार्ल पियर्सन का आर, और फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। चलिए कर लेते हैं। स्कैटर प्लॉट देख लेते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ। स्कैटर प्लॉट बना के दिखा रहा हूँ मैं। अगर स्कैटर प्लॉट बनने के बाद कुछ ऐसा बन के आ रहा है जिसमें से कोई पैटर्न उभर के नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये कोई पैटर्न नहीं है। आप देखेंगे कि कोरिलेशन तो है, और ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मूव होते हुए दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग अपवर्ड एज यू कैन सी। ओके, पर ये लाइन से ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा दूरी पे है, स्कैटर्ड है, तो हम कहेंगे लो है पर पॉजिटिव। पॉजिटिव कब? व्हेन इट इज स्लोपिंग अपवर्ड, व्हेन योर ट्रेंड लाइन इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। और स्कैटर ज्यादा है इसलिए लो। अभी आप देखेंगे स्कैटर थोड़ा सा मॉडरेट है, ये लाइन से आप देखेंगे बहुत ज्यादा पॉइंट क्लोज आ रहे हैं, कुछ ही पॉइंट्स दूरी पे है, ऐसे इसको हम कहते हैं मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन। और आर जब 0.5 के आसपास होगा तो इस तरीके से चार्ट बन के आएगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आप देखेंगे स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और क्लस्टर्ड हो रहे हैं लाइन के पास ही, ट्रेंड लाइन के पास पूरे के पूरे आपके जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है, क्लस्टर हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, आप देख सकते हैं लाइन पे ही कुछ पॉइंट्स आ गए अब तो। ओके, जिसको हम कहेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव कब होगा? स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख रहे हैं अभी लाइन ऐसे स्लोप डाउन हो रही है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर लाइन में खींचता हूं तो स्प्रेड ज्यादा है, स्प्रेड ज्यादा है लाइन से, तो हम कहेंगे वीक निगेटिव। उसके बाद ये मॉडरेट स्लोपिंग डाउनवर्ड ही है, पर थोड़े दूरी पे है, आप देख सकते हो ये मॉडरेट और ये वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये इस तरीके से बनेगा जब रिलेशनशिप है ही नहीं, तो आप देखेंगे पैटर्न ही नहीं उभर के आ रहा, ना ही ऐसी लाइन प्लॉट कर पा रहे हैं, ना ही ऐसी लाइन प्लॉट कर पा रहे हैं, स्कैटर्ड यानी सर्कुलर पैटर्न में आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे नो रिलेशनशिप। पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट अपवर्ड आप देख सकते हो, और स्लोपिंग डाउन हम कहते हैं इसको निगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कैटर प्लॉट स्पेसेस में कैसे तैयार करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके ही बता रहा हूँ।
और कार्ल पियर्सन का आर एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। इसका नल और अल्टरनेट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं और उससे समझा देता हूँ। कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे, SI EI का करते हैं। मेरे पास दो वेरिएबल्स है, ये दो वेरिएबल्स। SI स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये रियल लाइफ ही केस है, मेरे क्लाइंट की थी। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड ये था सेल्फ एस्टीम। AC इज सेल्फ एस्टीम। ये स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया था और रिसर्च क्वेश्चन क्या है, वेदर AC एंड SI आर कोरिलेटेड। सेल्फ एस्टीम और सोशल इंटेलिजेंस, इसमें कोई, सॉरी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इसमें कोई कनेक्शन होता है क्या? इसका नल बना लेंगे। नल सिंपल है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो कहता है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स है हमारा SI और वाई है हमारा AC। ओके, ये वेरिएबल्स और ये मैंने बैकग्राउंड क्लियर कर दिया है कि केस क्या है। दोनों के दोनों स्केल होने चाहिए, वेरिएबल्स बिल्कुल है। ओके, अभी स्कैटर प्लॉट पहले बना लेंगे इसका, उससे पता चल जाएगा। ग्राफ पे जाएंगे, लेगेसी डायलॉग्स और स्कैटर प्लॉट। इसमें सिंपल स्कैटर बना रहे हैं हम लोग। डिफाइन हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सेल्फ एस्टीम, बाकी कुछ नहीं करना है, ओके कर देंगे। ये स्कैटर बन के आ रहा है और आप देख रहे हैं स्कैटर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। रिलेशनशिप इतनी ज्यादा नहीं दिख रही, कुछ पॉइंट्स जा रहे हैं इस तरीके से। ओके, पर ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न उभरते हुए नहीं दिख रहा है। इसको मैं लो रिलेशनशिप ही दिख रहा है ये। स्कैटर से तो ये पता चल गया। ट्रेंड लाइन प्लॉट करके देखते हैं इसकी। लीनियर ट्रेंड लाइन, ये देखिए फ्लैट जा रही है, ये स्लोपिंग अपवर्ड ही है। स्लोपिंग अपवर्ड पर फ्लैट। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से पैरेलल ही है लगभग। ये आप देखेंगे यहाँ से हल्का सा यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिख रही है, यानी क्या, ये लो पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रही है। चेक कर लेते इसका आर का वैल्यू कितना आ रहा है। ओके, और उसके बाद फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करते हैं। यहां जाएंगे एनालाइज में, उसके बाद कोरिलेट, बाइवेरिएट, दोनों के दोनों वेरिएबल्स ट्रांसफर कर लेंगे। ऑप्शंस में देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट डेविएशंस, बाकी कुछ नहीं करना है, ओके कर देंगे। यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सैंपल साइज 69 का है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का और सेल्फ एस्टीम का। क्योंकि एक ही ग्रुप है ना, स्टूडेंट्स का ही है, तो सैंपल साइज सेम ही रहेगा। क्योंकि इसके लिए पेयर डेटा लगता है ना, तो सैंपल साइज सेम ही रहेगा दोनों का। उसके बाद हमको चाहिए पी वैल्यू, और ये है हमारा पियर्सन, कार्ल पियर्सन का आर, जो आ रहा है 0.08। यह है आपका 0 पॉजिटिव है और 0.8 लगभग इसके बिल्कुल नजदीक, 0.085। और हमने क्या कहा था, 0.5 तक वीक बोला था, और ये तो बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, वेरी वीक रिलेशनशिप। और वो स्कैटर में भी दिख ही रहा था। चेक करते हैं ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है क्या। नल क्या बोल रहा है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड AC। ओके, और ये है हमारी पी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0.05। ये SIG2 है ना, ये पी वैल्यू होती है। ये है 0.488 विच इज ग्रेटर देन 0.5, मीन्स इट इज नॉन सिग्निफिकेंट, मीन्स there is no relationship, it is accepted, null is accepted. So this is how we typically perform correlation analysis. चलिए अभी रिग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं क्विकली। रिग्रेशन का आइडिया मैंने दे दिया है।
शायद एक 5-10 मिनट हम लोग एक्सटेंड हो जाएंगे, 4:30 हो रहे ऑलरेडी, पर फिर भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रिग्रेशन में फर्क क्या है कोरिलेशन रिग्रेशन में। रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई। एक्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एक जो एग्जांपल मैं ले रहा था कि सेल्स और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, देखिए सेल्स कितने आएंगे ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो डिपेंड है किस पे, मैं एडवर्टाइजमेंट कितना करता हूँ उस पे, और एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कितना करना है वो मेरे हाथ में है। मैं तो डिसाइड कर सकता हूँ कि इस महीने में 2 लाख करेंगे, अगले महीने में 5 लाख करेंगे। यानी क्या, ये वेरिएबल जो है ये मैं खुद मैनिपुलेट कर सकता हूँ, यानी चेंज कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ। जो वेरिएबल हम मैनिपुलेट कम या ज्यादा कर सकते हैं उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें चेंज करने के बाद इसमें क्या बदलाव आ रहा है, जिसमें बदलाव आता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और रिग्रेशन में हम एक मॉडल तैयार करते हैं, रिग्रेशन मॉडल। मैं सिंपल रिग्रेशन की बात कर रहा हूं। हम एक रिग्रेशन मॉडल तैयार करते हैं जिसका मॉडल का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए प्लस पी एक्स। इसमें y जो है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैं बोल रहा हूं सेल्स, और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैं कह रहा हूं एडवर्टाइजिंग। a जो है इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, sorry b is y, a is constant y intercept and b is slope of the trend line y intercept जिसको कांस्टेंट भी कहा जाता है, और b है स्लोप। इसका मतलब समझा रहा हूं। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आपके दोनों वेरिएबल्स, इफ सपोज x इज आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एंड y इज सेल्स। मैंने मेरे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दिए हैं, और इफ सपोज मेरे पास एक ट्रेन लाइन आई है, ये वाली मेरी ट्रेन लाइन है। ओके, अभी इसमें a क्या है, ये वाला a, ये है y इंटरसेप्ट। आपकी ट्रेन लाइन x एक्सिस को कहाँ कट, सॉरी y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो वैल्यू आएगी इसको कहते हैं a। y क्या है, मेरा x वैल्यू, इफ सपोज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 1 लाख है, तो सेल्स कितने हैं उसके करस्पॉन्डिंग, 1 लाख के लिए सेल्स है इतना। इफ सपोज ये है 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। ओके, अगर मैं 1 लाख का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 2 लाख कर देता हूं, तो y में कितना फर्क आ रहा है, आप देखेंगे y जा रहा है यहाँ पे, ये वाला 50 लाख का इफ सपोज 1 करोड़ हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हो गया आपका x और ये है y, और ये जो निकाल रहा है ये वाला पार्ट, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूं, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं स्लोप। एंड ये स्लोप इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ x, dy अपॉन dx। और ये पूरी वैल्यूज यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू हम लोगों को SPSS कैलकुलेट करके देता है। और हम फिर उसके बाद इसका रह गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्या करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग चेक करते हैं कि ये जो b है, वेदर दिस b इज नॉट जीरो, यानी रिग्रेशन एनालिसिस में नल क्या होगा, b इज नॉट जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो ही ये मॉडल फॉर्म होगा। अगर ये b जीरो हो गया तो ये x वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, यानी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए होता है। यानी क्या, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो रिग्रेशन मॉडल बन नहीं पा रहा है और प्रेडिक्शन के लिए यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि x जीरो की इफेक्ट की वजह से। तो हम लोग चेक क्या करते हैं, वेदर दिस b इज नॉन जीरो, ये हम चेक करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से मैं आपको एक रिग्रेशन एनालिसिस पूरा का पूरा समझा देता हूँ। सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा थियरी समझा ही देता हूँ मैं। ओके,
एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन और दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और इसमें फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हायरार्किकल रिग्रेशन, ये कुछ फ्लेवर्स है मल्टीपल के। हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। सिंपल यानी क्या, आपके पास एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है, ये डीवी है आपका और ये आईडीवी है, एक एक ही है दोनों। तो हम लोग जो करेंगे उसको, यानी फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मॉडल। ये हो गया सिंपल रिग्रेशन। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो ये जो केस है ये बन जाती है मल्टीपल रिग्रेशन की। इसमें फिर बी टू एक्स थ्री, बी फोर एक्स फोर, ये सब आप कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से समझा देता हूं मैं आपको। रिग्रेशन इनकम और कंजम्पशन है, समझा देता हूं। देखिए इनकम है और कंजम्पशन है, तो इससे यू कैन इजीली मेक आउट कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। कंजम्पशन विल ऑब्वियसली डिपेंड ना, तो देयरफॉर डीवी इज कंजम्पशन, जिसको हम वाई वेरिएबल कहेंगे, और इनकम जो है हमारा वो है आईडीवी। इनकम कम या ज्यादा हो सकता है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरा मॉडल क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई क्या है, कंजम्पशन, और x क्या है, इनकम। और मुझे अभी एक मॉडल तैयार करना है। रिग्रेशन में हम लोग, रिग्रेशन एनालिसिस में ये मॉडल तैयार करते हैं सो दैट वी कैन यूज दिस इक्वेशन फॉर प्रेडिक्शन पर्पस। और हम लोगों को चाहिए मॉडल तैयार करने के लिए a और b की वैल्यू, जो हमको स्पेसिस कैलकुलेट करके देगा। ये पहला पार्ट। एनालिसिस में करेंगे क्या, एनालिसिस में हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे, ये वाला। इसमें दूसरी चीज, इक्वेशन बनाने के लिए हमको लगेगी a एंड b वैल्यू, जो हमको स्पेसिस निकाल के देगा। तीसरा क्या करेंगे, वी विल चेक वेदर b इज नॉट जीरो, जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो चलिए परफॉर्म करते हैं। एक बार डेटा दिखा देता हूं मैं आपको, दोनों के दोनों स्केल वेरिएबल। ये डेटा है मेरे पास, इनकम और कंजम्पशन का। इस तरीके से डेटा लगेगा हमको। लगभग 60 का डेटा दिख रहा है ये, ठीक है। ये इनकम है और ये कंजम्पशन है। एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन और फिर लीनियर। इसमें इनकम है हमारा इंडिपेंडेंट, कंजम्पशन है डिपेंडेंट। बाकी इसमें स्टैटिस्टिक्स में देख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं। मीन मोड मीडियन वगैरह लगेगा हमको, स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल साइज। प्लॉट्स में कुछ नहीं करना है, ये होमोजेनिटी ऑफ वैरिएंस टेस्ट के लिए करते हैं। स्टैंडर्डाइज बीटा कोएफिशिएंट्स नहीं लेंगे फिलहाल, तो ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ओके कर देंगे। ओके, अभी चेक करते हैं ये वाला मॉडल समरी। इसमें सबसे पहले चेक करते हैं आर और आर स्क्वायर की वैल्यू। ये आर यानी पूरे मॉडल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं, और ये होता है आर स्क्वायर जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, आर स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर 0.5 के ऊपर होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5। हमारा कितना आ रहा है, 0.951। बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर इज 0.951। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो दो वेरिएबल्स है x और y, तो x y में जो वेरिएशन आ रहा है इट इज एक्सप्लेन्ड बाय x अप टू 95%, या 95.1% एक्चुअली। ओके, कि y में जो बदलाव आ रहा है वो बदलाव x के कारण आ रहा है, ये एक्सप्लेन हो रहा है 95.1% से। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5। ये क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद पूरा का पूरा रिग्रेशन मॉडल हमारा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये सिग्निफिकेंट है क्या, तो हाँ बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। इट इज लेस देन 0.05।
तो हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट है। मॉडल कहाँ है हमारा? मॉडल बना लेंगे अभी। ये कोएफिशिएंट्स है, यहाँ से मॉडल बनेगा। ये कांस्टेंट यानी ए की वैल्यू है, और इनकम यानी ये बी यानी वाई आपका स्लोप ऑफ द लाइन, और ये कोएफिशिएंट्स है हमारे ये। तो हमारा रिग्रेशन का मॉडल क्या बन रहा है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई यानी क्या? तो कंजम्पशन। ए कितना है? ये 17, प्लस बी कितना है? 0.6, और एक्स यानी इनकम। दिस मॉडल वी हैव प्रिपेयर्ड। ओके, अभी चेक करते हैं कि वेदर दिस बीटा वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, और ये मॉडल हमारा यूज कर सकते हैं क्या प्रेडिक्शन पर्पस के लिए। तो उसके लिए बी की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है ये वाली, ये चेक करना होगा, एंड इट इज लेस देन 0.05 मींस इट इज सिग्निफिकेंट, means beta is not zero. This is being proved and we can use this model for prediction purpose. अभी आप इनकम चेक कर लेंगे, आपकी जो रेंज है इसमें। इफ सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 50,000 इनकम है, तो कंजम्पशन पे कितना पैसा खर्च होगा ये मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। कंजम्पशन इज इक्वल टू 17 प्लस 0.6 इंटू 50 करना होगा यहाँ पे, तो ये कंजम्पशन की वैल्यू निकल जाएगी। सो सिंपल। So this is how we typically perform regression analysis using SPSS. Just to summarize the things, we have performed chi-square test of independence या association today. Same time, we have learned the concept of relationship. We have performed simple correlation analysis and simple regression analysis in today's session. So it is all over from my side for today's session. If you are having any queries, I will be very happy to take on. Over to you, organizers. थैंक यू वेरी मच। पांडे सर है प्रेजेंट? जी जी। एनी क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट? Participant, any questions? Okay, nice presentation, sir. One thing I would like to know, Yes, sir. when we use marginal MOE, marginal of error, Margin of error. sometimes the reputed journal, they are asking to calculate marginal of error. So how we calculate this? Margin of error, possibly you are talking about? Margin of error Marginal you are. of error, MOE. Actually, journal, they are referring MOE, calculate MOE. That is what is called as margin of error, sir. Yes. And we generally means I haven't come across such kind of figures while performing this particular thing, means correlation, regression, and all. We generally don't compute this. Okay. And another is they are also demanding a multivariate curve resolution, MCR. Multivariate curve resolution, MCR. So if you clarify this concept. नहीं, इस पर्टिकुलर केस में नहीं ये सब अप्लाई होता है सर। वॉट एवर लेवल वी आर ऑपरेटिंग एट द बिगिनर्स लेवल, it is generally not being used and reported, sir. Okay. Thank you, sir. Any doubts regarding today's session or the whole workshop, whatever test we have performed? Everything is okay because I did this type of SPSS package research work. I am the field of economics as well as education. That's why I have cleared so many things by your practice. I have been benefited much. Thank you, sir. My pleasure, sir. Okay. Okay, hope so. मंडल सर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका होगा। और कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? ओके, फिर
मैं वोट ऑफ थैंक्स प्रज्वल सर को बुलाना चाहूंगा हमारे थैंक्स के प्रज्वल मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले आपने बहुत सारा समय हमारे लिए निकाला कॉलेज के लिए, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आपका एक अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छा फीडबैक जो है ग्रुप पे भी लोगों का मिलता है और यहाँ पे भी एक हेल्दी सेशन आपने कंडक्ट किया, थैंक यू वेरी मच सर। और जो भी मेडिकल इमरजेंसी आपके घर में है सर, हम वही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने बहुत धन्यवाद निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसा मैं दोनों कॉलेज मनोरमा और रणजीत सिंह गुजरिया महाविद्यालय उनमें और दोनों कॉलेज से आप सबको ये यही समाप्त होता है और आपके मेल पे मिल जाएगी ये। Sir, is there any feedback link, sir? Is there any feedback link for the जो purpose? रिकॉर्डिंग है सेशन में, वो रिकॉर्डिंग भी जो है आज शाम तक आपको जो है कल